So I'm live on Facebook at 5 p.m. So any questions which my viewers would have regarding melasma and lasers and melasma treatment, I would be happy to. Can everyone hear me clearly? Am I audible? गुड इवनिंग आशीष जी. कैन एवरीवन हियर मी? मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके, थैंक यू सो मच. It's 4 minutes to 5 o'clock. And is this link going to be shared to my profile also? So I'll wait for the people to join in and ask their questions. So if anyone who's already online and wants to ask me something, I'll be more than happy to answer. Good evening, Adarsh ji. I'm comfortable with both languages. If you want me to answer in English, I'll do the same. If you want me to answer in Hindi, I'll do the same. I don't have an issue in any of either of the languages. So you can type in your question in the comment box and I'll take up the answer. Good evening, Aditya ji. Good evening, everybody. So I think it's 5 o'clock, so we can start the session. Any questions which anyone would have? Okay, I got your point. I thought it was a question answer session. So today the topic which has been assigned to me is melasma. Melasma in Hindi is also called jhaiya. So melasma is a disorder of pigmentation. It has a multifactorial etiopathogenesis. Melasma can never be classified under one platform. It is a facial dermatosis which has relation with your sun exposure, which has relationship to stress, which has relationship to hormones. It is seen more commonly in females than males. In the Indian perspective, 4:1 is the ratio of how many males get it to females. For every 4 females, 1 male would get it. So it's more commonly seen in females. Earlier it was known as cholasma or the mask of pregnancy because it was seen in women during or after pregnancy. Melasma can be classified in 2 ways: on the basis of depth, meaning on the basis of depth. Someone has asked me a question in Hindi, so
answer in Hindi also. On the basis of depth, epidermal melasma or dermal melasma, on which depth it is, or mixed melasma, which can be examined with a Wood's lamp, or on the basis of distribution, centrofacial, malar, mandibular, where the melasma resides. Melasma has a lot to do with sunlight, so using a sunscreen, photo protection is very, very important in melasma. There are a lot of treatments available. Doctors give oral tablets, we give creams, kojic acid, hydroquinone, we give Kligman's formula, the triple combination creams, we give peels, we do lasers, oral tranexamic acid. But I would not like to elaborate on the medication, because in melasma the main problem which we face is people medicating themselves. Now the same thing I'll say in Hindi, because most of the people are asking me questions in Hindi. melasma या झाइयाँ बहुत एक विभिन्न अलग अलग फैक्टर्स के कारण होने वाली बीमारी है. कोई एक चीज को हम चिन्हित नहीं कर सकते कि इस कारण से हो रही है. जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जेनेटिक कारण 30% रहते हैं, मतलब 30% लोगों की फैमिली में भी मेलाज्मा देखा जाता है. हार्मोनल चेंजेस की वजह से, स्ट्रेस की वजह से मेलाज्मा देखा जाता है. सबसे शुरू में प्रेग्नेंट औरतों में इसको देखा गया था, तो इसको कोलाज्मा भी बोला गया था, मास्क ऑफ प्रेगनेंसी. क्लासिफिकेशन में ये किस स्तर पे है, आपके स्किन में किस सतह पे है, तो एपिडर्मल या डर्मल होता है. मिक्स्ड भी होता है, जो दोनों तरफ होता है. मिक्स्ड हम काफी कॉमनली देख पाते हैं. डर्मल मेलाज्मा को ट्रीट करना डिफिकल्ट होता है, एपिडर्मल थोड़ा इजी रहता है. सेंट्रोफेशियल मतलब कहां पे है, नाक के ऊपर है, चारों तरफ है, मैंडिबुलर रीजन में, मैक्सिल रीजन में है, इस तरीके से भी इसका क्लासिफिकेशन होता है. इसके इलाज के लिए दवाइयां होती हैं, लेजर्स होती हैं, पील्स होती हैं. मगर मैं इसके बारे में इसलिए ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा कि मेलाज्मा की सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि लोग अपने मन से ऑइंटमेंट यूज करते हैं, गलत ऑइंटमेंट यूज करते हैं. जो ऑइंटमेंट चेहरे के लिए नहीं बने हैं वो यूज करते हैं. ट्रिपल कॉम्बिनेशन क्रीम को गलत तरीके से या बहुत ज्यादा दिनों के लिए यूज करते हैं और फिर अपना केस बिगाड़ के हमारे पास आते हैं. बट मॉडर्न डर्मेटोलॉजी में मेलाज्मा को ठीक करने के बहुत सारे तरीके हैं. अब मैं क्वेश्चंस को आंसर करूंगा. देखिए, रुशकार सैयद जी ने पूछा है कि उनका स्किन बहुत सेंसिटिव है और उनको एक्नी और रेडनेस होती है. देखिए, आपको एक बीमारी हो सकती है जिसको हम एक्नी रोजेशिया भी बोलते हैं अगर स्किन रेड होता है. इसका इलाज आप ऐसे ऑनलाइन पूछ के ना लें, आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो आपको एक प्रॉपर फेस वॉश देंगे, एक प्रॉपर मॉइस्चराइजर देंगे, प्रॉब्ली एक फिजिकल सनस्क्रीन देंगे और बहुत सारे ऐसे क्रीम्स आपको जो फायदा कर सकते हैं, उनमें से जो डर्मेटोलॉजिस्ट को ठीक लगेगा वो देंगे आपको, और इसी से आपका काम मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए. देखिए, ऑयल जिनके में एक्सेस रहता है उसको बिल्कुल रेगुलेट और कंट्रोल किया जा सकता है. ओरल टैबलेट्स भी होती हैं इसकी, फेस वॉश भी होता है. पिगमेंटेशन के लिए हम, जैसा कि मैंने बताया, मेलाज्मा सिर्फ एक टाइप का पिगमेंटेशन है, और भी बहुत तरीके के पिगमेंटेशन हमारे चेहरे पे हो सकते हैं. इसमें सन एक्सपोजर बहुत जरूरी है. बिना सन एक्सपोजर के यूजली पिगमेंटेशन खराब नहीं होता. आजकल हम यूवी लाइट्स जो यूज करते हैं अपने, जो हम एलईडीज यूज करते हैं अपने घर में, उसमें भी यूवी रेडिएशन कुछ लेवल का आता है, तो वो भी कुछ स्टडीज में देखा गया है कि मेलाज्मा और पिगमेंटेशन को थोड़ा बहुत वर्सन कर सकती हैं. बट मेन सनलाइट है, तो इसलिए एक अच्छा सनस्क्रीन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन, पीए फैक्टर का सनस्क्रीन, बूट स्टार रेटिंग का सनस्क्रीन, जिसमें यूवी ए, बी और सी तीनों रुके, ये ऐसा अपन को यूज करना चाहिए. मेकअप आप कर सकते हैं, पतला लेयर सनस्क्रीन यूज करें और मेकअप करें. अगर चेहरा पूरी तरह से काला दिखाई दे रहा है, फोटो टैनिंग है, कोई और मेलेनोसिस है, हो सकता है लाइकन प्लानस पिगमेंटोसिस, तो क्या है मैं यहां से आपको ऐसे नहीं बता सकता. तो मैं बात का यही जवाब दूंगा कि ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए गो टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट. आदर्श मिश्रा जी पूछ रहे हैं व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ मेलाज्मा. मैंने बताया देयर इज नॉट वन मेन कॉज ऑफ मेलाज्मा. इट कैन बी हार्मोनल इम्बैलेंस, इट कैन बी स्ट्रेस इंड्यूस, इट कैन बी सनलाइट. देयर इज in melasma we see a lot of factors coming together. There is a hyperproliferation of your blood vessels also. There is a vascular component to melasma also. So it has a genetic predisposition. 30% of the people have a genetic predisposition. But I would say if you want one reason, so it would be hormonal and stress related. That's how. And the sun. Without the sun you can't get melasma. So the sun is also a very important factor. मैं आपको जनरल चीजें मेलाज्मा के बारे में बताऊंगा. ज्यादातर लोग यहाँ हिंदी में सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं हिंदी में ही बात करता हूँ.
मेलाज्मा जिनको हो चुका है वो मेरे से सबसे ज्यादा ये सवाल पूछते हैं कि सर इसका जड़ से इलाज है क्या, ये हम एक बार ठीक हो जाएगा तो ये फिर से नहीं होगा क्या, गारंटी है क्या ये ठीक होने के बाद कभी फिर से नहीं होगा? तो इसका जवाब ये है कि जड़ से इलाज किस चीज का है। आपको सर्दी खांसी होती है या टाइफाइड होता है या मलेरिया होता है तो आप उसका इलाज लेते हैं, लेकिन अगर उसके बाद वही गलती आप फिर से दोहराएंगे, गलत खाना खाएंगे, या अगर आपको फिर से मच्छर काटेगा या फिर से वायरस आपकी बॉडी में प्रवेश करेगा तो वो बीमारी आपको फिर से हो सकती है। वैसे ही मेलाज्मा में आपको सनस्क्रीन इस्तेमाल करना है, 8 घंटे की नींद लेनी है, 1 घंटा एक्सरसाइज करना है, हरी सब्जियां खानी है, फास्ट फूड, ऐसे फूड जो नेचुरल इंग्रेडिएंट से नहीं बने उनको अवॉइड करना है। अगर आप ये सब करते रहेंगे, सन प्रोटेक्शन लेते रहेंगे, अपने डॉक्टर की सलाह मानेंगे तो बिल्कुल भी मेलाज्मा वापस नहीं आएगा। लेकिन यदि आप वही गलतियां फिर से दोहराएंगे तो मेलाज्मा बिल्कुल वापस आ सकता है, क्योंकि ये मेलानोसाइट्स जो अपने शरीर के नॉर्मल सेल्स हैं, पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, उनकी हाइपर एक्टिविटी का, उनके डिसऑर्डर है। तो नॉर्मल सेल्स एबनॉर्मली बिहेव कर रहे हैं तो उसको जड़ से मिटाना किसी के लिए संभव नहीं है। जैसा किसी भी पैथी के लिए, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे एलोपैथी हो, जो डिसऑर्डर्स हैं, जो ऑटो इम्यून डिजीज हैं, उनको जड़ से कोई नहीं मिटा सकता। हाँ, आपके शरीर से उनको अलग करके कई सालों तक आपके शरीर से दूर रख सकते हैं, वो एक किस्म का इलाज ही हुआ। तो ये मेलाज्मा को लेके एक वो थी। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सनस्क्रीन, गुड इवनिंग प्रमोद सोनी जी, what is the most effective treatment for melasma? Very good question. See, I would say that there is a step ladder approach which we follow in melasma. In my practice, I would first like to go with orals and topicals if it is not contraindicated. मतलब खाने की दवाई और लगाने के मलहम दोनों हम एक साथ देंगे। Orals and topicals I would start with medications. If there is some reason, if I have less of time, कोई कारण है हमारे पास समय नहीं है, then I would go with peels, glycolic acid peels, lactic acid peels. There is a whole slew of peels which we can use in melasma. So I would like to go with peels and medications first. But ultimately, melasma, I have presented papers on this also. We are using the Q-switch ND-YAG laser on melasma, the Pico and the Nano both. So आजकल melasma का इलाज जो दवाइयों से भी असरदार नहीं हो रहा है, जो melasma ऑइंटमेंट से भी ठीक नहीं हो रहा, उनका इलाज बिल्कुल लेजर से संभव है। लेजर एब्सोल्युटली सेफ है, लेजर्स आर एब्सोल्युटली सेफ इफ दे आर यूएस एफडीए अप्रूव्ड, इफ द डॉक्टर इज डूइंग इट हिमसेल्फ। अगर डर्मेटोलॉजिस्ट खुद लेजर कर रहा है, प्रॉपर वो अप्रूव्ड लेजर है, तो लेजर से आपको डरना नहीं है। लेजर से भी मेलाज्मा को रेमिशन में डाला जा सकता है, मतलब पीछे ढकेला जा सकता है। गलती करेंगे वो बिल्कुल वापस आ सकता है, बट उसको पीछे जरूर ढकेला जा सकता है। देखिए, आप अपने चेहरे पे हल्दी, कुमकुम आदि ये सब खुद अपनी मर्जी से यूज ना करें। मैं बार बार एक ही चीज समझा रहा हूं। ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स, ये जो आपके अलग अलग एडवर्टाइजमेंट आते हैं, जैसे एक क्रीम आता था स्किन लाइट, जिसमें एक्चुअली बैंड इंग्रेडिएंट्स हैं पूरे के पूरे, जो आपको कभी भी अपने चेहरे पे यूज नहीं करना चाहिए, और वो लोग धड़ल्ले से यूज करते थे। कई जो हमारे आयुर्वेदिक प्रिपरेशन जो हम सोचते हैं कि बिल्कुल भी हार्मलेस हैं, उनमें कईयों में हमें स्टेरॉइड जैसे प्रोडक्ट्स मिले हैं, या किसी में आउटराइट स्टेरॉइड ही मिला है। तो आप बिना डॉक्टर को पूछे चेहरे के साथ अपने मत खेलिए। डोंट प्ले विद द स्किन ऑफ योर फेस, बिकॉज वंस इट गेट्स डिस्ट्रॉयड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस डर्मेटोलॉजिस्ट टू ब्रिंग इट बैक। एक बार आपका चेहरा बर्बाद हुआ तो हमारे लिए बहुत कठिन रहता है उसको वापस सही करना। पहली बात सबसे जरूरी समझने वाली है, अंग्रेज चले गए बट अपनी मानसिकता हमारे पीछे छोड़ गए। गोरा होना सुंदर होना नहीं होता। फेयरनेस इज नॉट इक्वल टू ब्यूटी। स्किन टोन एक होना चाहिए। अगर आप इंडियन हैं तो आपका स्किन टोन फिट्जपैट्रिक टाइप 4 टाइप 5 रहेगा, थोड़ा आपका डार्क टोन हो सकता है। गोरा होना इज नॉट द क्राइटेरिया। आपका स्किन टोन एक जैसा हो, सुंदर हो। कई इंटरनेशनल मॉडल्स को आप देखेंगे, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मेल्स को आप देखेंगे तो उनका स्किन टोन डार्कर रहता है। हॉलीवुड एक्टर्स में भी डार्क स्किन टोन वाले आजकल ज्यादा पॉपुलर है। तो फेयरनेस के पीछे ना भागें। हमारी कंपनीज का नाम भी अब देखिए, वो प्रेशर की वजह से फेयर एंड लवली से चेंज हो गया है, वो कुछ और हो गया है, फेयर उससे वर्ड उन्होंने हटा दिया है। तो बेसिकली आपको ये बहुत समझना जरूरी है कि सुंदरता का मतलब गोरापन नहीं है। फेयरनेस डज नॉट इक्वेट टू बीइंग ब्यूटीफुल। यू शुड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर नेचुरल सेल्फ। आप अपने आप का बेस्ट प्रारूप बनिए, अपने आप से आप जो बेस्ट हो सकते हैं वो बनिए, वो सुंदरता है। राघवेंद्र पांडे जी नमस्कार। आनंद दुबे जी गुड इवनिंग। और कोई क्वेश्चन अगर मैंने छोड़ दिया हो तो फिर से डाल दीजिए, क्योंकि वो बढ़ता जा रहा है टिकर ऊपर।
ठीक है, तो फिर मैं अगले टॉपिक पे डिस्कस करता हूं। जो लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि लेजर यूज करने से हमारा स्किन डैमेज तो नहीं हो जाएगा, लेजर यूज करने से ऐसा तो नहीं हम धूप में नहीं जा पाएंगे, ऐसा तो नहीं जब हम लेजर यूज करना छोड़ेंगे तो उसके बाद हमें फिर से वो बीमारी वापस और ज्यादा खराब तरीके से आ जाएगी। इस सब का आंसर है कि मैं लोगों को ऐसा समझाता हूं कि एक कोई आप ऑटो में बैठेंगे तो वो भी एक ट्रांसपोर्टेशन का जरिया है, और आप एक मर्सिडीज कार में बैठेंगे तो वो भी ट्रांसपोर्टेशन का जरिया है। आप ऑटो लाख 1.5 लाख की होती है, उसमें कोई सुविधाएं नहीं होती। आप ऑटो में भिड़ेंगे, एक्सीडेंट होगा तो आपका क्षतिग्रस्त होना बहुत लाजमी है, आप 60-70% चोट पाएंगे। बट आप मर्सिडीज में भिड़ते हैं, सेफ्टी होती है, कार होती है, एयरबैग्स होते हैं, तो आप इंजॉर्ड नहीं होंगे। तो वैसे ही लेजर्स में है, अगर आपने रिसर्च नहीं करी है, कोई आप नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर के पास चले गए हैं, आपने चीनी लेजर, चाइनीज लेजर अपने ऊपर करवा ली है, तो वो लेजर्स नुकसान करती हैं। हमारी डर्मेटोलॉजिस्ट की जो लेजर होती है यूएस एफडीए अप्रूव्ड, अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त, कोरियन एफडीए, कोरिया द्वारा मान्यता प्राप्त, सेल्फ कैलिब्रेटिंग होती है, मतलब हर बार वो अपने आप को टेस्ट करती हैं और फिर चालू होती हैं। ये लेजर्स बिल्कुल सेफ हैं। जब डर्मेटोलॉजिस्ट इनको खुद करते हैं, इनका कोई नुकसान, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और जब सही तरीके से किया जाए तो लेजर से ज्यादा सेफ कुछ नहीं है, क्योंकि वो टारगेट क्रोमोफोर पे काम करता है। जहां हमें जिस चीज को मिटाना है, लेजर सिर्फ उसी को जाके टारगेट करता है, बाकी चीजों को नुकसान नहीं करता। यहां मेरे से किसी ने पूछा है कि 23 साल के हैं, अंडर आई सर्कल्स भी मिलाजमा है क्या? नहीं, अंडर आई सर्कल एक बिल्कुल अलग चीज है। अंडर आई सर्कल्स में भी लेजर्स यूज होती हैं, बहुत सारे ऑइंटमेंट्स एंड क्रीम्स यूज होते हैं। अंडर आई सर्कल्स के लिए जनरली आपको 8 घंटे सोना चाहिए। 8 घंटे एक साथ सोएं तो और अच्छा है। रात को सोने के पहले मोबाइल, लैपटॉप, टीवी का उपयोग ना करें। मोबाइल अंधेरे कमरे में उपयोग ना करें। अगर मोबाइल आप उपयोग कर भी रहे हैं किसी कारण से, तो ब्लू रे फिल्टर या नाइट मोड ऑन कर लें। सोने के आधे 1 घंटे पहले मोबाइल का उपयोग नहीं करें। म्यूजिक सुने, किताब पढ़ें, क्योंकि जब आप ठीक से नींद नहीं ले पाते हैं तब भी आपको डार्क सर्कल्स होते हैं या प्रोमिनेंट होते हैं। डार्क सर्कल्स जेनेटिक भी हैं, अनुवांशिक कारणों से भी होते हैं। मगर अगर आप सोने के पहले व्हाट्सएप कर रहे हैं, फेसबुक कर रहे हैं, ऐसी चीजों में अपने मन को व्यथित रख रहे हैं जिन चीजों का आपसे कोई सरोकार नहीं है और आप कुछ उसमें बदल नहीं सकते, तो आपको नींद अच्छी नहीं आती। 2 किस्म की स्लीप होती है, रैपिड आई मूवमेंट एंड नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। तो जब अच्छी आपको नींद नहीं आती, एक नींद होती कि हम सोए और सुबह उठे हमें सब याद था कि हमने रात को क्या सोचा, क्या किया, वो अच्छी नींद नहीं है। और एक है हम सोते हैं बिल्कुल बिना चिंता के, हमारे हिंदी में बोले तो घोड़े बेच के, और सुबह एकदम फ्रेश रिफ्रेश उठते हैं। तो ऐसी रिफ्रेशिंग स्लीप से आप अंडर आई सर्कल से, कई सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं अगर आप वो लेंगे तो वैसे भी। बट इसके लिए होम रेमेडीज या ये सब ना ट्राई करें। इफ आपके अंडर आई सर्कल्स आपको परेशान कर रहे हैं तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जरूर मिले। देखिए, किसी ने मेरे से, राघवेंद्र पांडे जी ने पूछा है कि फ्रेकल्स का क्या रीजन है। तो देखिए, फ्रेकल्स यूजुअली फेयर स्किन्ड पीपल में ज्यादातर देखा जाता है। फ्रेकल्स इज ड्यू टू सन एक्सपोजर। धूप के अलावा फ्रेकल्स का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। तो आप अपने उन फ्रेंड को एक अच्छा सनस्क्रीन यूज करने बोलें। अगर फ्रेकल ज्यादा और डीप हो गए हैं तो फ्रेकल लेजर से बहुत आराम से हटाए जा सकते हैं, क्यू स्विच लेजर से, और उसके बाद लगातार आप सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स यूज कर सकते हैं, तो आगे ये फ्रेकल्स नहीं होंगे। तो फ्रेकल्स का रिकरेंस तो बिल्कुल होगा ही होगा, क्योंकि अगर आपने सनस्क्रीन नहीं लगाया तो फ्रेकल्स का रिकरेंस बिल्कुल होगा। लेकिन फ्रेकल्स के लिए मेरे हिसाब से लेजर सबसे अच्छा तरीका है टू गेट रिड ऑफ फ्रेकल्स। मिलाजमा को लेके लोगों में और बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि मिलाजमा को हम मिलाजमा की ड्रग से कहीं हमारे, जो हम लोग देते हैं ट्राइनेमिक्सिक एसिड, तो हमारे ब्लीडिंग प्रोफाइल पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। जो हम दवाई ले रहे हैं उससे हमारा खून ज्यादा गाढ़ा तो नहीं हो जाएगा, हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड्स पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा। तो जिस कॉन्सेंट्रेशन में हम दे रहे हैं वो 250 mg है, 250 mg है, और हम जब इसको ब्लीडिंग रोकने के लिए यूज करते हैं तो 4 ग्राम में यूज करते हैं। तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन अलग है। हाँ, कुछ पेशेंट्स में कुछ प्रकार के डिसऑर्डर्स होते हैं, उनमें हम वो ट्राइनेमिक्सिक एसिड बंद कर देते हैं। ट्राइनेमिक्सिक एसिड चालू करने के पहले हम आपका पूरा ब्लीडिंग प्रोफाइल कराते हैं, आपके सीबीसी, आपके इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। जब आप उसके लिए ठीक माने जाते हैं तभी हम आपको वो दवाई देते हैं। ऐसे ही बिना किसी रिसर्च के हम नहीं देते। सो अगेन आई विल रिपीट द सेम थिंग इन इंग्लिश, दैट tranexamic acid is given after a battery of investigations. We make sure that you are safe to be given that drug. That drug is given in 250 milligrams, and for clotting disorders it is given at 4 grams. So it is a different concentration, so it will not affect you adversely. And if your dermatologist is giving you, then there is no issue whatsoever.
SPF कितना होना चाहिए सनस्क्रीन का? सनस्क्रीन का देखिए SPF इंडियन स्किन में 30 के ऊपर कहीं पे भी हो सकता है। सन प्रोटेक्शन फैक्टर का मतलब ये होता है कि बिना सनस्क्रीन यूज किए और सनस्क्रीन यूज करने के बाद आप कितना गुना सन से प्रोटेक्ट होते हो। तो SPF 30, 40, 50 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, अनलेस आपको स्पोर्ट्समैन है या आप बाहर आउटडोर्स खेल रहे हैं। 30 के ऊपर एनी SPF इज गुड इनफ, बट सारे अच्छे सनस्क्रीन का SPF 50 से ऊपर आपको मिलेगा। SPF के अलावा आपको PA फैक्टर और बूट स्टार रेटिंग देखनी चाहिए। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब अल्ट्रावायलेट की A, B और C तीनों रेस को प्रोटेक्ट करने वाला सनस्क्रीन लेना चाहिए। सनस्क्रीन एक केमिकल सनस्क्रीन होता है और एक फिजिकल सनस्क्रीन होता है। फिजिकल सनस्क्रीन ज्यादा ताकतवर होते हैं बट थोड़ा चेहरे को सफेद करते हैं। सिलिकॉन बेस्ड और जो केमिकल सनस्क्रीन होते हैं या मिक्स सनस्क्रीन होते हैं जिसमें फिजिकल केमिकल कंपोनेंट दोनों होता है, वो चेहरे पे इतने ज्यादा सफेद नहीं दिखते, इजी टू वेयर रहते हैं, चेहरे को ऐसा हैवी नहीं बनाते और वो भी नॉर्मल लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। तो मार्केट में बहुत सारे सनस्क्रीन है, बट सनस्क्रीन की चॉइस भी डर्मेटोलॉजिस्ट से करवाएं तो अच्छे हैं। बट अगर आपको 2-3 नाम चाहिए तो सोला सेफ, सनहॉल्ट सनस्क्रीन, यूवी डाउक सनस्क्रीन, लाशील्ड फिजियो, लाशील्ड, ऐसे बहुत सारे अच्छे सनस्क्रीन हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। मेन मुद्दा है कितना सनस्क्रीन, तो 2 फिंगर यूनिट्स बोला जाता है, बट अलग अलग ट्यूब का नोजल अलग अलग साइज का होता है। कई का छोटा नोजल होता है कि जिसमें उनको लगता है ज्यादा चले सनस्क्रीन, तो आप उंगली भर लीजिए सनस्क्रीन। उंगली भर सनस्क्रीन लेके अपने चेहरे और गर्दन पे धूप में निकलने के 15 से 20 मिनट पहले अप्लाई करिए। और अगर लगातार आप धूप में रह रहे हैं और किस टाइम ऑफ द डे पे रह रहे हैं, अगर आप 9 से लेके 12, 1 के बीच में रह रहे हैं तो हर 2 घंटे में रीअप्लाई करिए। 1 से लेके 3 के बीच में रह रहे हैं तो 2.5 से 3 घंटे में, 3 के बाद 3 घंटे बाद रीअप्लाई करिए। मतलब सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना बहुत जरूरी है, किसी भी हालत में हर 3 घंटे में तो रीअप्लाई करना बहुत जरूरी है। किसी ने पूछा कि मेलाज्मा एक लाइफ लॉन्ग डिजीज है क्या? इज मेलाज्मा लाइफ लॉन्ग डिजीज? आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन ऑलरेडी, बट आई विल अगेन आंसर इट। सी, मेलाज्मा इज a disease which has relapse, which can come back to you, which can have a recurrence and which can have a remission. Remission is when that disease is not apparently there in your body. So yes, I have patients who I have treated for melasma and no new lesion of melasma has come on their face since the past 5 years. So that in itself I think is a good enough cure. Maybe they get a lesion of melasma which can easily be treated in a few days. So yes, melasma will recur. It's a chronic disease. In many cases, it's a stubborn disease, but you should get it treated. And how many people come to a doctor? I would say not even 30-40% people come to a doctor. They go to the pharmacist, to the chemist. They give the some cream to apply. They become all right for some days, or they apply some makeup, and they keep neglecting the disease. So when they come to us, the disease has reached a more advanced level and has worsened. That's why we are not able to treat it immediately and we take time. The people who come to us primarily, जैसे ही बीमार melasma देखते हैं वैसे ही आते हैं, who come to us first are more easily treatable. So if you have melasma, don't waste time. Go to your dermatologist as soon as possible. Colasma and melasma are the same thing, sir. Colasma is an old term which was used and known as the mask of pregnancy. I have already said this. Kapil Patel ji has asked me a question. I would not say that any food prevents melasma, but yes, any food which produces superoxides in the body, like tea which has tannins, coffee, fast foods which has many chemicals in them, it is generally bad for you. So it is also bad in melasma. So I would suggest that people who have melasma should cut down on their refined sugar, should cut down on fast foods, should cut down on artificial flavoring and artificial colors, and should cut down on the tea and coffee. You are most welcome to have green tea, but normal tea and coffee you should cut down on. I think I have missed a few questions. No. So in the time which we have left, I will want to tell you a very important aspect. Okay, I'll answer this question first. Is there any injectable? No, we don't use any intravenous or intramuscular injection for melasma. Yes, we do. Some people do derma rolling and drug delivery system wherein they use the derma roller or micro needling to deliver the drug into the dermis using the micro needling and derma roller. But I don't use derma rolling or micro needling in melasma. Many people do that. Some people have studies with PRP also, but I find PRP is very useful in
androgenetic alopecia and facial rejuvenation in other things, but not in, I don't use PRP for melasma. I have my lasers for that. And so I would like to take a few moments to discuss the social aspect of melasma. So what I would like to say is that, usually males don't come to me for melasma treatment. It is usually the females who come to me, and especially just before they have to get married. So it is a very sad state of affairs in India that only women are judged on their facial appearance and not men. And still in arranged marriages, like you go to buy a TV or a fridge, or you go to select a pet, like in the same way the women of India are still treated, and that is very foolish. If you have this kind of a mentality that you want to look at only the girl's face or a little bit of pigmentation which she might have, and that is why you want to accept or reject that person who you have to spend your rest of your life with whom you have to have children with whom you have to share your finances with, then that is a very stupid way of looking at things. Melasma is treatable, so don't be so worried about melasma that patients come to me that within 1 week we some boys coming to see my daughter or my sister, so please doctor give me a quick fix treatment. So there is no quick fix treatment to melasma. If someone is going to reject your daughter or sister because she has melasma, you should reject that guy first. हिंदी में मेलाज्मा की जो बच्चियां हमारे पास आती हैं मेलाज्मा लेके, लड़के बहुत कम आते हैं, ज्यादातर लड़कियां आती हैं और शादी के पहले आती हैं कि अगर हमारा मेलाज्मा ठीक नहीं हुआ तो हमारे को पसंद नहीं करेंगे लड़के. तो ये बहुत ही मूर्खता भरा डिसीजन है लड़कों के बिहाफ पे. कोई लड़की को यदि आप 1-2 काले धब्बे के लिए एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहे हैं, ऐसी लड़की को जिसके साथ आपको आगे जिंदगी अपनी बितानी है, बच्चे करने हैं, आपके फाइनेंसेस आपको हमसफर बनाना है, पर्सनैलिटी आपको नहीं देखनी है, बच्ची की पढ़ाई लिखाई नहीं देखनी है, उसका बिहेवियर नहीं देखना, सिर्फ चेहरा देखना है, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है. और मैं ऐसे पिताओं और भाइयों को बोलूंगा कि अगर कोई मूर्ख लड़का मेलाज्मा के बेसिस पे आपके बेटी या बहन को रिजेक्ट कर रहा है तो आप उसको पहले ही रिजेक्ट कर लो. मेलाज्मा का झाइयों का इलाज बिल्कुल है, उसमें समय लगता है, कोई चुटकी बजा के इसका इलाज नहीं कर सकता. यदि चुटकी बजा के मेरे पास इसका इलाज होता तो मेरे को नोबेल प्राइज मिल जाता और भारत के हर शहर में मेरी एक मूर्ति लगी होती ऑलरेडी, बट ऐसा नहीं है. तो उसका इलाज का अपना समय लगेगा और उस समय तक आपको घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, इलाज इसका बिल्कुल संभव है. हाउ मच कैफीन इनटेक इन मेलाज्मा, आई कांट आंसर दैट. I would say that don't take caffeine, but I can't answer how much caffeine. If it's not affecting you and you're having 1 or 2 cups of coffee in a day, I would not hold that wrong. But someone asked me, so I would say don't take coffee. But if you can't live without coffee, then you take coffee and see how your melasma is behaving. If it's not behaving well, you cut down on your caffeine. If it's okay, you keep that on. We give antioxidant multivitamins to our patients also of melasma. So that's how we, in all my prescriptions, you'll find a antioxidant concoction which helps my melasma patients or not. Hydroquinone has to be used. This is the most common bleaching agent which is used. Kapil Patel ji has asked me. But how long to use it? That is what we doctors are here for. If you start using hydroquinone and you don't taper it properly, as soon as you stop hydroquinone, you will get melasma back. If you don't use sunscreens with hydroquinone, if you don't use a proper moisturizer with hydroquinone, if you don't maintain your skin barrier with along with hydroquinone, it's going to be of no use. And hydroquinone, using it again and again, using it improperly will have a lot of side effects on you. So I would advise not to go for hydroquinone directly. Go to your doctor. That doctor will decide whether to use hydroquinone or kojic acid or arbutinol or what to use as a bleaching agent, not only hydroquinone. So don't go for it yourself. And if you're using it, don't use it for more than 20 days. That is what I would say. Maximum 20 days use it. Any questions which I have left? So, after speaking about the social aspect, in the end I would like to talk about the cost of treatment. मेलाज्मा का इलाज कितना महंगा है? तो देखिए, मेलाज्मा का इलाज महंगा बिल्कुल नहीं है. यदि हम सस्ते सनस्क्रीन भी दे सकते हैं अपने पेशेंट्स को, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर भी बहुत इकोनॉमिकल वाले आते हैं, तो 1,500 से लेके 2,000 रुपए के बीच में भी 1 महीने का इलाज हो सकता है. How expensive is the melasma treatment? It's not expensive at all. Depending upon what sunscreens you use, the melasma treatment can be done between 1,500 to 2,000 rupees. That is the cost of medication. क्या जांचें करानी चाहिए मेलाज्मा में? मेलाज्मा में स्पेसिफिकली अगर अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो कोई जांच की जरूरत नहीं है, और अगर जरूरत है तो काफी सारी जांचें होती है. जांचें भी
2 से 2,500 के बीच में हो सकती है। एडवांस इन्वेस्टिगेशन की तो कोई सीमा नहीं है, बट एक फेयर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2 से 2,500 रुपए के बीच में हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन पर से आर नॉट दैट वाइटल इन melasma, but if we need to get them done, they can be done between 1,500 2,000 to 2,500. There is no limit to advanced investigations, but simple investigations are not that expensive. Lasers की क्या कॉस्ट आती है? How much do lasers cost? Lasers, different doctors will charge differently, but per session of laser would be anywhere between 2 to 4,000 rupees in tier 2 cities, and in metros it can be upwards of 5,000. It depends on the dermatologist, but per session 2,000 rupees. हर सेशन का 2,000 रुपए के आसपास आपको लगना चाहिए। और कितने सेशन लगना चाहिए मेलाज्मा में? तो 3 से 4 सेशन 20 से 30 दिन के बीच में, आइडियली 25 दिन, 25 दिन के गैप में, इंटरवल ऑफ 25 days you take the sessions of lasers, and that is how you get benefit. So कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट डिस्कस हो गया, लेजर्स का कॉस्ट डिस्कस हो गया। लाइफस्टाइल चेंजेस थोड़े से मैं और डिस्कस कर लेता हूं। लाइफस्टाइल चेंजेस में मेलाज्मा के मैं वही बोलूंगा कि सनस्क्रीन को आप अपना सबसे बड़ा दोस्त माने। धूप से बचाव, धूप से बचाव, धूप से बचाव 3 बार मैंने बोला। सनस्क्रीन यूज किए बिना जरी देर के लिए भी बाहर ना जाएं। सुबह एक बार चेहरा धोने के बाद, मॉइस्चराइजर लगाने के बाद सनस्क्रीन प्रोफाइलैक्टिकली लगा लें। मतलब आप ये मान के चलें कि आपको बाहर जाना पड़ सकता है तो आप सनस्क्रीन पहले ही लगा लें। घर के अंदर रहने वाले तो भी सनस्क्रीन लगा लें, क्योंकि कहीं आपको बैल्कनी में जाना पड़ा, कहीं किसी को कपड़े सुखाने जाना पड़ा, कहीं कुछ सामान लेने जाना पड़ा, तो आप तब रुक के सनस्क्रीन लगा के तो नहीं जाओगे। तो आपने पहले ही लगा लिया तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज, हरी सब्जियां खाइए, नियमित तौर पे खाना खाइए। लंच की समय पे लीजिए। अगर 1 बजे रोज खा रहे हैं तो अगले दिन भी 1 बजे खाइए, उसके अगले दिन भी 1 बजे। डिनर अगर 9 बजे ले रहे हैं तो रोज 9 बजे लीजिए डिनर। 8 घंटे की नींद लीजिए। 1 घंटा एक्सरसाइज करिए। 1 घंटा एक्सरसाइज करने का ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ जिम करें। अपने बॉडी वेट के हिसाब से कैलिस्थेनिक्स, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करिए, एरोबिक्स करिए, कोई स्पोर्ट खेलते हैं तो खेलिए, अपने आप को डी स्ट्रेस करिए। स्ट्रेस भी मेलाज्मा में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। तो हफ्ते में 1 या 2 दिन अपनी हॉबीज को दीजिए। किसी को ड्राइंग पसंद है, किसी को पेंटिंग पसंद है, उसमें भी समय दीजिए कि आप डी स्ट्रेस हो सके। क्योंकि जब आप डी स्ट्रेस होंगे तभी आप अपने इस बीमारी को, अपने इस डिसऑर्डर को हरा पाएंगे। नहीं तो अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे, तनाव में रहेंगे, तो आप इसको नहीं हरा पाएंगे। कौन सी डाइट लेनी चाहिए? तो मैंने आपको बताया, प्लांट रिच डाइट लीजिए, हरी सब्जियां लीजिए, फ्रूट्स लीजिए जो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, तो इससे आपको बहुत सारा फायदा होगा। कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, मेकअप हैं, जिनसे मेलाज्मा बढ़ता है, उनको अवॉइड करिए। अननेसेसरी फेशियल प्रोडक्ट्स अवॉइड करिए, गोरा होने के, ग्लो लाने के जो आजकल मार्केट में मिलते हैं, कुछ भी रेटिनॉल क्रीम बोल देते हैं, कोई कुछ बोल देते हैं, इनको अवॉइड करिए। कुछ लोग पूछते हैं कि अल्कोहल कंजम्पशन, ड्रिंकिंग या स्मोकिंग से मेलाज्मा बढ़ता है क्या? कोई भी बीमारी ड्रिंकिंग या स्मोकिंग से बढ़ती है, क्योंकि ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, ड्रिंकिंग में आप एथाइल अल्कोहल लेते हैं जो कि एक पॉइजन, नोन पॉइजन है, जो आपके ब्रेन को, मस्तिष्क को इफेक्ट करता है, और निकोटीन एक कार्डियक पॉइजन है जो आपके हृदय को इफेक्ट करता है। तो किसी भी प्रकार का जो नशा है वो मेलाज्मा क्या, किसी भी बीमारी को खराब करेगा। और जो लोग बोलते भी हैं कि उनको वो करना है, उनको रेड वाइन लेना है, तो रेड वाइन भी आप सिर्फ हाफ अ ग्लास 4 days a week ले सकते हैं। दैट इज द परमिटेड लिमिट ऑफ रेड वाइन। और उस रेड वाइन को आप मेटाबोलाइज भी करना पड़ता है, आपको उतना एक्सरसाइज भी करना पड़ता है। तो इसीलिए ऐसे किसी भी किस्म का हम मादक पदार्थ ना लें। नो काइंड ऑफ एडिक्शन इज गुड फॉर मेलाज्मा। सो आई कैन नॉट से दैट टेकिंग एनी काइंड ऑफ एडिक्टिव सब्सटेंस इज गुड। इफ यू कैन नॉट स्लीप, अगर आपको नींद की समस्या है तो आप बिल्कुल अपने साइकाइट्रिस्ट को दिखाइए। बिना साइकाइट्रिस्ट को दिखाए काम नहीं चलेगा, और आप नींद अपनी पूरी हो ये असर्टेन करिए। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। It's 5:30 now, and all the questions that were asked to me I have answered. In the end, again, I would like to thank USV for organizing such a nice session. I would like to thank their technical team who set up this interactive session with all of you. And if any kind of questions still remain, I'll be more than happy to come online again and answer them for you. So thank you so much for joining me. All the best and take care. Thank you so much, Anand ji, for your comments. Thank you so much. Namaskar.